Hello dear students, as we have already understand the concepts of integers in my first video, so today we are going to take exercise questions of this chapter. So we are starting the questions of exercise 6.1 now. So first question we are having, mark the following points on a number line and find the smallest and the greatest one. Okay, in that we have to find one thing, that what is the smallest and what is the greatest number. Okay, so we have to mark the point in the number line first. So for that we have to make one number line here. So I'm going to make one number line. ओके मेक वन नंबर लाइन हियर. मैंने नंबर लाइन यहाँ बना दिया है, इसको हम थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं, एरो बना देते हैं. सो हियर at the center we are having whole number, that is 0. Here we will show negative numbers, negative integers. Here we will show the positive integers. So this is the right side and this one is left side. Okay, so on right side we can see we have to show 4, that is positive. So 0 1 2 3 4. okay, so 4 we are appointing as a, हम इसको a नाम दे देते हैं. Then -3 we have to consider, -1 -2 -3. okay, so here -3 is here, we are pointing it as b, इसको b point दे देते हैं. And 0 is a c, हम इसको c point दे देते हैं. okay, now we have pointing all the points on a number line. हमने a दे दिया है 4 को, ठीक है, we have given 4 as a. then b हमने दे दिया है -3. then c we have considered as 0 को हमने क्या दे दिया है c. clear? now find the smallest and the greatest. अब इसमें smallest बताना है. in the earlier video I have explained the concept of greater and the smallest. देखिए जितना हम लोग राइट साइड जाते जाएंगे, जितनी वैल्यू राइट साइड में होती चली जाएंगी वो ग्रेटर होती जाएंगी, और जितनी लेफ्ट साइड में हम जाएंगे वो स्मॉलर होंगी. ओके, सो राइट साइड से हम देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास 4 है, सो 4 इज द ग्रेटेस्ट वन. क्लियर? सो 4 इज द greatest value. clear? then we are having -3 सबसे पीछे की तरफ, यानी लेफ्ट साइड में सबसे पहले वैल्यू हमारे पास क्या है, that is b point, that is 3, -3. so -3 is smallest. so in this question, in this part of this question we are having two things. First we have to tell the smallest and greatest number. so the smallest and the greatest number is, you can see here that we are having -3 as the smallest number, and that is the positive 4 is greatest one. okay, let's take 10 12 and -3 on a number line. हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं. सो अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन नंबर लाइन. एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की यहाँ पे, ठीक है. इसमें हमने 0, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं 12. क्लियर? एंड हियर वी हैव टू शो -1 -2 -3. ओके, हमने यहाँ पे कंसिडर किया. नाउ वी हैव टू पॉइंट आउट, हमें पॉइंट देने हैं फॉर नंबर लाइन्स. नंबर्स वी आर हैविंग on the number line. so first number we are having 10, that is positive 10. तो हमने इस positive 10 को a point दे दिया. then 12, that is also positive, so इसको b consider किया. then -3 हमने इसे consider कर दिया c. मैंने आपको बताया जितना हम लोग राइट में जाएंगे हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी. तो सबसे राइट पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 12. सो 12 इज ग्रेटेस्ट वन. 12 क्या हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू. क्लियर? एंड 10 इज, सॉरी, -3 इज स्मॉलर वन. -3 हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा. -3 इज स्मॉलर. I hope you have understand this concept. Kindly go through all the parts. okay, इसको practice करिएगा. next we are having question number 2. I'm just removing all the things and clearing the image. yes, we have done. next is question number 2. question number 2 is asking which of the number in each of the following pairs lie to the right of the other on the number line. कौन किसके राइट में है, वी हैव टू जस्ट चेक इट आउट.
ठीक है। सो फॉर दैट आई एम मेकिंग वन नंबर लाइन, मैं बस नॉर्मल चीज़ों को लेंगे, 0 पहले 6 आएगा देन 17 आएगा, ऐसा होता है ना, पहले 6 आएगा देन 17 आएगा, ये वाली वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इन फर्स्ट पार्ट दैट इज ए पार्ट वी आर हैविंग 17 एंड 6 एंड वी हैव टू टेल विच वन इज द राइट टू द अदर। सो 17 इज द राइट टू द 6। सो यहाँ पे 17 क्या हो गया, 17 इज राइट ऑफ 6, ठीक है। 6 के राइट में क्या है, 17 है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, ओके, सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं फटाफट, बी पार्ट। In B part we are having the digits that is -3 and -7, -3 and -7. Now we have to just consider on the number line 0, पहले -3 आएगा देन -7 आएगा, ठीक है। अब कौन किसके राइट में है, देखिए -3 राइट साइड में किसके, -7 के। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -3 लाइज राइट ऑन -7। सो -7 के राइट साइड में कौन है, -3, क्लियर। सिमिलरली 0 and 5, -5, सो 0 इज ऑन द राइट ऑफ -5 हेयर, डी पार्ट। -7 and 8 नेगेटिव आपका नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होता है और पॉजिटिव आपके राइट साइड में होता है। सो 8 इज द राइट ऑन -7, ठीक है। यानी कि नंबर लाइन पे 8 इज कंसिडर एज द राइट साइड, ठीक है। वो कहाँ पे कंसिडर हो रहा है, राइट साइड पे, ठीक। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। You have to do all the parts, all the remaining parts you have to do, and you are not able to understand, you will ask, okay, you will ask and comment on the comment box if you will not able to understand any part of the question, okay। Then third question we are having, write all the integers between the following। 2 and 10 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, तो देख लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. We will not consider 2, we will not consider 10 because we have to find out all the integers between 2 and 10. 2 और 10 के बीच में हमें चाहिए, so we will not consider 2 and 10. So 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, these are the value which are, these are the integers which are between 2 and 10, okay। Similarly we are having next part that is B part, -8 and 2। -8 और 2 के बीच में हमारे पास कितनी वैल्यू, तो फॉर दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसिडर, सो यू विल मेक अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन बना लीजिए आप, है ना। यहाँ पे हम 0 शो कर देते हैं, यहाँ पे 1 शो करते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड देन -8। हमें चाहिए -8 से 2 के बीच में वैल्यूज़, सो द वैल्यू आर दीज। सो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1। So these are the number which lies between -8 and 2, यानी कि -8 और 2 के बीच में these are the number which lies, okay। ये सारे नंबर जो हैं वो आते हैं, यानी कि -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 and 0 and then 1 which lies between -8 and 2। नेक्स्ट इज -5 एंड 5, +5। -5 और +5 के बीच में जो वैल्यूज़ आती हैं उन्हें हमें कंसिडर करना है। सो फॉर दैट आई एम अगेन मेकिंग वन number line। So here positive numbers I am placing, okay। Here negative, -1, -2, -3, -4, -5। तो देखिए आप, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4, these are the numbers which lies between -5 and 5, यानी कि -5 और +5 के बीच में जो numbers होते हैं these are -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4, okay। I hope you have understand. Remaining part you have to practice. Next question number 4 we are having. In this we have to just fill up the blanks with smallest, greatest and equal sign, okay। So we are having 9 and 6,
तो बोथ आर पॉजिटिव, ओके, बोथ आर पॉजिटिव, सो 9 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो हम लोग इस तरह से साइन लगा देंगे 9 इज ग्रेटर 1, ठीक। देन 7 एंड -3, वन इज पॉजिटिव एंड वन अनदर इज नेगेटिव। नेगेटिव इज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर, जो नेगेटिव होता है वो स्मॉलर होता है पॉजिटिव से। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि नंबर लाइन पे जितना हम लोग राइट साइड जाएंगे उतनी वैल्यू बड़ी होती है और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी होती है। तो राइट साइड में कौन सी वैल्यू होती है? पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में कौन सी होती है? नेगेटिव। तो नेगेटिव इज स्मॉलर, सो हेयर 7 is greater than -3. Next we are having -6 and 0. Negative and 0 is neither considered is neither 0 is considering as neither positive nor negative, ना तो 0 नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। बट नंबर लाइन पे 0 जो है वो -6 के राइट साइड में होगा, तो दैट्स वाई 0 विल बी ग्रेटर। यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वी आर हैविंग -10 एंड -6। अब -10 और -6 में कौन सा बड़ा है, इसके लिए अगेन नंबर लाइन बनाते हैं। 0 -6 पहले आएगा, देन -10 आएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, तो -6 क्या है? राइट साइड में है, तो -6 क्या हो जाएगा? इसमें ग्रेटर हो जाएगा। ओके, देन वी आर हैविंग -11 एंड -11। सो आपको पता ही है -11 एंड -11 बोथ आर सेम, सो दिस इज इक्वल। एंड हियर -11 and +11, one is negative, another is positive. Okay, so positive value is greater than negative, so +11 is greater than -11. I hope you have understand question number 4 also. Let's proceed to the next question. Here we have question number 5, which is asking write the absolute value of each of the following. अगर हमें किसी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय -1, उससे -1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो वी विल गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू। सो 3 का एब्सोल्यूट निकालना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद -1, सो वी विल गेट -3। इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13, तो हम 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट -13। सिमिलरली 16 पॉजिटिव में है, 16 मल्टीप्लाइड बाय -1, वी विल गेट -16। यहाँ पे 17 नेगेटिव में है, तो -17 मल्टीप्लाइड बाय -1, वी विल गेट +17। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। आई होप you have understand all the questions in the exercise. Thank you for watching the video.